I have a very special guest with me, and I would like to introduce him with Iqbal's शेर. दिल से निकली बात असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है. Yes, I have India's one of the most versatile musicians, Mr. Hariharan, with us. Thanks for giving your time to Times Network. My pleasure. And आज़ादी के उपलक्ष्य पे ये बिल्कुल खास है आपसे मिलना. Our viewers already know that you are a veteran of 15,000 songs in 10 regional languages. You are a recipient of the Padma Shri in 2004 and many national awards. And there is no vidha of music that you have not touched. You just mentioned that you have come up with 35 ghazal albums. You are also a teacher of the Carnatic classical music. And there is no music that No, I'm not a teacher of Carnatic music. Yes. But I have learned Carnatic You have music. learned Carnatic my music. father and mother, my mother is a teacher of Carnatic music. Absolutely. And So my first question at the outset is, India has turned 75. This is not a moment to reveal your age because you're eternally young. But but how do you see India growing along with you, or you growing along with India? that's better. How I grew up with our country. Yes. Everything was different. Bombay, I'm born and brought up in Bombay. So talking of our city, in the 50s and early 60s, it had a village atmosphere, even Bombay. And the community, social system बड़ा एकदम close था, close knit. Life was simple. और एक दूसरे को मदद करने के लिए कभी भी रेडी रहते थे. और वक्त, there was time with people, कि बैठ के बात करें, चेहरे को देख के बात करें, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं फ़ोन लेकर. तो this entertainment is very simple. कि आप किसी के घर गए, खाना खाएं या गप्पे मारे थोड़ा, उसके बाद सब गाते थे. Singing was like so common. Singers were पता नहीं सब गाते थे. मेरे फैमिली में, मेरे मदर साइड, मेरे नाना, फिर नाना की सिस्टर्स, फिर उनके कज़न्स, अम्मा, my aunties, अम्मा के जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सब गाते हैं. आपके वालिद पढ़ाते भी थे षणमुखानंद से जुड़े Shanmukananda थे? में, he was the principal of Shanmukananda. और उन्होंने, my mother was a student of his. तो उन्होंने उस ज़माने में he had nearly about 600-700 students in his own institution, South Indian School of Music, and he was also principal of Shanmukananda School of Music. And my mother अपनी ज़िंदगी में 1200 या 1300 स्टूडेंट्स को सिखाई है. One woman institution, I would say. हम सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब इतना डेडिकेशन जो है. एंड तो वो उनका आशीर्वाद, उन्होंने जो किया है, सो आई स्टार्टेड सिंगिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लेसिंग्स हो आपके साथ. 75 साल is a kind of landmark for a country like India. पहला और एक linear question पूछता हूँ, that how has the music grown in the country over the years, or has it metamorphosed, or has it changed? Because you literally, as we spoke earlier, you are the Desh Rag. Desh Rag means something else, but you have composed in South people, there is a recall value. 15 अगस्त में किसी भी गली कूचे में जाओ तो भारत हमको जान से प्यारा है, इसके अलावा लोगों का दिन नहीं शुरू होता. आपने देश की मौसीकी भी बदलते हुए देखी है, उसके बारे में कुछ बताइए. जैसे सोसाइटी चेंज होता है, इंटरेक्शंस चेंज होते हैं, तो फ्यूजन म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होता है.
स्पेशली अभी आप देखिए, इंस्टा देखिए, यूट्यूब देखिए, कि आप किसी आर्टिस्ट वर्ल्ड में आप सुन सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो यहाँ के फनकार हैं वो भी सुनते हैं, तो उसका असर सबकॉन्शियसली होता है, ज़रूर होगा ना, लाइक। तो और उसके बाद क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में भी सारे जॉनर्स को अपनाने लगे, जैसे सूफी, जैसे वेस्टर्न फ्यूजन, कंपोजिशंस डिफरेंट होने लगे, रॉक कॉन्सेप्ट आया, ब्लूज आए हैं उसमें। तो उस टाइप से फिल्म म्यूजिक चेंज हुए, एंड ऑल्सो द सोशल स्ट्रक्चर इज चेंज ना। अभी जो घर पे आप जाएंगे किसी घर पे, हाय डैड हाउ आर यू, जीन्स क्लैड, मैं भी जीन्स पहना हूँ अभी। तो when you change, your personality changes, the Indian personality changes, so everything changes around it, the language, the music, sound changed tremendously in the 90s. उससे पहले कमाल क्या क्या काम किए हैं लोगों ने। See, every 60s was the golden era of music, 60s 70s. फिर 80s में थोड़े चेंज हुए, it became more, the films were more action oriented, तो उसके हिसाब से you had this thing. 90s was more of love songs and lovey-dovey kind of songs. Then 2000 से different genres started coming. तो every 10 years, पहले 30 साल, every 10-15 years it used to change soundscape, प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, गाना किस तरह से गाते हैं। एक था कि पहली फिल्म गायकी में यू हैड मुर्कीज एंड यू हैड इंट्रिकेसीज ऑफ सिंगिंग, और जैसे जैसे बढ़ते गए इट इज़ लाइक द बॉय नेक्स्ट डोर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, आसानी से गाते हैं, वो भी मुश्किल है, उसमें भी इमोशन चाहिए। आप खुद ने गाए हुए अगर नगमों की बात करें तो 80s में जो आपने गाया और 90s में, उसमें किस जैसे कि दिल से प्यार किया, जाने मन जाने बहार, आकर ले जी भर के प्यार, दिल से दिल ने इकरार किया। तो इस टाइप के, हे हो ला, दिस वाज द टोन ऑफ द हीरोज। उससे पहले मैंने शुरुआत किया, गजल से शुरुआत किया। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने अभी देखिएगा कितनी जगहें हैं, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब सानेहा। दिस वाज 77। आप अपने जिक्र छेड़ ही दिया है गजल का, तो वहाँ उस प्रांत में घुसना ही पड़ेगा। आपने गमन के लिए अपनी पहली गजल गाई थी, यही गाना गाया था मुजफ्फर अली का, और उसमें सुरेश जी ने सीने में जलन गाया। और ऐसी देखिए, ये 77 में कॉम्पोजिशंस में आपको 60s का नजर आएगा। जी मतलब जगहें, हाँ, किस तरीके से आप गा रहे हैं। तो 80s में और चेंज हुए हैं। नाच न जाने कहे आंगन टेढ़ा, नाच न जाने मेरे धुनों पे देखो राधा लहराए, आधा बदन थिरके आधा तन गाए, ताल बेताला सारा जीवन तेरा, नाच न जाने। दिस वाज अ ड्यूएट विद किशोरदा। तो इसके बाद होगा तो हे गाना अजी ये मेरा गाना है गाना। तो दिस वाज लाइक अ कॉमेडी काइंड ऑफ अ सॉन्ग, एक चतुरनार, दैट काइंड ऑफ, दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स वर देयर। सो ये 80s में या 90s में हुआ। बिल्कुल। और आपने ही कई कॉन्सर्ट में मैंने सुना है कि आपने गजल को इंडियन ब्लूज का नाम दिया, या वो शीर्षक दिया। वो बहुत, एक तरफ सीने में जलन या गमन में हमने देखा कि एक टैक्सी ड्राइवर
जो शहर में आता है और वो माइग्रेंट लेबर की दास्तान जी, उसमें जी, थी, जी। और बाद में आपने जो गज़ल की है, तो दर्द तो कॉमन था, लेकिन गज़ल किस तरह से इवॉल्व हुआ? उसमें टेक्नो और वेस्टर्न पहले ताबू था, और बाद में आपने दोनों जिस तरह से दोनों को मिलाया एक तरीके से, देखिए एक और जो बात है संगीत कि तैयार हुआ। ब्लूज़ और गज़ल जो है, दोनों में पोइट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और पोइट्री में आप अपने दिल की बात कह रहे हैं, अपनी लाइफ की बात कह रहे हैं, खुशियाँ, गम, बिछड़ना, मिलना, इसके बारे में आप जिक्र करते हैं। सो कंटेंट ऑफ पोइट्री नियरली सिमिलर है, और सुर भी जो यूज़ करते हैं ब्लूज़ का, तो वो बहुत सपोर्ट करता है गज़लों को भी। तो उस तरीके से अगर हम रोमांटिक टाइप ऑफ गज़ल्स लें, और जिसमें फिलॉसफी ऑफ रोमांस हो या फिलॉसफी ऑफ रिलेशनशिप हो, तो ज़रूर ब्लूज़ बन सकते हैं। ये आईने से अकेले में गुफ्तगू क्या है, जो मैं नहीं हूँ तो फिर तेरे रूबरू क्या है। ये आईने से अकेले में गुफ्तगू क्या है। तो ये छोड़िएगा, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। अभी गायकी चेंज। हम है मुश्ताक और वो बेजार, बेजार बेजार। हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादां। तो ये एक देखिएगा, हम 1960s में 60-70s में सारे जो बॉलीवुड के गाने थे, रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, इतने सारे गज़ल गाए हैं, तो अननोइंगली हम वो भी गाते थे, जैसे कि फिल्म गाना है, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। बेहतरीन गज़ल है। तो हम वो उसको गज़ल नहीं कहते थे, यार रफ़ी साहब का बड़ा अच्छा गाना है, तभी गाते थे, बगैर सोचे समझे क्या गा रहे हैं हम। उसके बाद लगा कि हमें समझ में आया कि ये जो पोइट्री फॉर्म है, इसको गज़ल कहते हैं। अच्छा, गज़ल का मानी म्यूज़िक है ही नहीं, गज़ल का मानी है पोइट्री फॉर्म। उसमें रदीफ़ है, काफ़िया है, तो एक मीटर है, शेर है, मतला है, मक्ता है। तो ये जो फॉर्मेट है उसे हम गज़ल कहते हैं। और उसमें क्या है कि हर एक शेर एक ही टॉप के बारे में नहीं मतलब बोलती है, तो हर अलग अलग टॉपिक में वो बयान करते हैं। सो दिस इज़ गज़ल। देन वी न्यू दैट। मैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का शागिर्द बना मैं 1974 में। तो उसके बाद उनसे ख़याल सीखा, बड़े ख़याल छोटा ख़याल, और वो गज़ल बहुत शौक़ से गाते थे, कंपोज़ भी किए उन्होंने। तो तभी उनसे मुझे सीखने को मिला क्या है बेसिकली ये। देश की अनेकता में हम एकता, एक बात करते रहते हैं, एक लैंडमार्क था, और जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी एक किरदार रहा है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का किरदार रहा है देश के बाकी मतलब देश को इकट्ठा लाने में, और उसमें एक लैंडमार्क फिल्म रही है रोज़ा। और 90s में एक तरीके से देशभक्ति की का जज्बा भी उस फिल्म ने जगाया, और आपकी आवाज़ जो थी वो उस जज्बे का रथ था, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। उसमें भारत हमको जान से प्यारा है, एक छोटा सा नगमा है, लेकिन इतना वो पॉपुलर हुआ। क्या था उसका जर्नी? और उसके बाद में हम उसके तमिल वर्जन पे भी ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी उसका जर्नी क्या था A.R. रहमान साहब के साथ एक्चुअली काम करते? 92 में A.R. रहमान जो यहाँ मुझे एक जिंगल गाने के लिए बुलाए थे बम्बई में। ही यूज्ड टू बी टॉप
जिंगल प्रोड्यूसर, यू नो, लाइक दैट कमर्शियल वर्ल्ड। तो उन्होंने बुलाया तो मैं मिला, बड़े वेरी शाई पर्सन, मगर उनका गाना मैं सुना, ट्रैक कुछ अलग ही था। इट वॉज न्यू, जिस तरीके से उन्होंने सितार यूज़ किया था उसमें, एंड इट वॉज बजिंग। सो आई सेड आई लव द ट्रैक, तो आई sang इट। तो सब होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मणिरत्नम के लिए, तो उसमें आपको गाना है। मैं बोला ज़रूर गाऊंगा। मतलब मणिरत्नम, एंड एक तो मणिरत्नम साहब, और इनका रहमान का जो एक प्रोडक्शन है बहुत अच्छा लगा मुझे मालूम था कि उसमें कुछ अच्छा ही होगा इससे। तो मैं बोला ज़रूर मैं आऊँगा जब भी आप करेंगे। और उस वक्त उन्होंने कहा कि वो मेरे जो एक रिफ्लेक्शन एल्बम बहुत पॉपुलर हुआ था, तो वो उन्होंने पता नहीं बहुत सालों तक सुनते रहे। He got hooked on to Reflections, which was one of my main albums which became very popular early 90s में। तो in a way my singing was, he knew my singing, it was introduced to them। उनको मालूम था कि ये कैसे गाते हैं, इनका टेम्परामेंट क्या है। रोजा क्लिक हो गया वो गाना। अच्छा, मुझे इतना, मैं फिल्म देखने गया, पहले तो तमिल में देखा था, तो तमिळा तमिळा नाले नम नाले, तमिळा तमिळा नाडुम नम नाडे, உனக்குள்ள இந்திய ரத்தம் உண்டா இல்லையா, ஒன்றான பாரதம் உன்னை காக்கும் இல்லையா, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है। तो मैं जब फिल्म देखा, मैं वेट कर रहा हूँ, फिल्म हो गया। बोला यार गाना नहीं है। मैं तो टाइटल शुरू हुआ तो भारत हमको शुरू हो गया टाइटल्स में। बोला हे राम यार, अच्छा लोग तो चले जाएंगे, सुनेंगे नहीं कोई, कैसा हिट होगा। और मुझे खराब भी लगा, इतना अच्छा गाना है, एक पोटेंशियल दिखता है ना कि जब आप गाना सुनते हैं तो यार ये लोगों को अच्छा लगेगा करके। बट द रेडियो प्ले वाज सो मच ऑफ दिस सॉन्ग, एंड इसमें क्या है ना कि इट्स पैट्रियोटिक सॉन्ग, बट इट्स लाइक ए लल्लेबाई। इतना उसमें डायनेमिक्स है। तो माटुंगा के गलियों से शुरू हुआ ये सफ़र, और फिर पूरे देश को अपील किया ही हिंदी सिंगिंग का, और फिर ऑफ कोर्स मूल जो मेरा फर्स्ट गज़ल जी एल्बम है 1980। जी तब से मैं गा रहा हूँ। एवरी ईयर ट्रेडिशनली मैं एक एल्बम रिलीज करता था। तो वो उसका जो फैंस है मेरे, जो मेरे 80 से जो फैन हैं, बहुत डिवोटेड हैं सारे। आज तक जो मैंने लास्ट हाजिर 2 जो रिलीज किया था 2 साल पहले, वो भी रहेगा उनके पास, वो सारी यादें उनको। और कॉलोनियल कजिन्स, जिसमें वी ब्रॉट इन द, आई एम टॉकिंग नॉन फिल्मी, द पॉप 90s विद, इसमें भी नॉन फिल्मी जब क्लिक होता है, उसका लाइफ इज एज, जब तक आप गा सकते हैं आप गाते रहिए कि लोग सुनेंगे। ये कमाल है। that was an era when Indian music was opening up to the world. At the same time, you had to retain the soul of Indian music. Correct. And that is when you and Leslie Lewis. Correct. Remember the song? We used to go literally listen to that song while we were in school. Magarisa. Can you talk about that song and Colonial Cousins? Something about the way you smile, I may never know the reason why. Sunny da ba ma ga ma ga ri sa.
ओ जाना निगाहों में है कैसा ये नशा, अदाओं में है जादू कैसा तौबा, न जाना कहीं जाना ये मौसम बेवफा, सानी दा मगा मगरिसा। तो ये फिर कृष्णा, these were songs which happened, एक वक्त होता है ना क्रिएशन का, तो और लोग भी बहुत प्यार दिए। That Krishna couplet was actually heard in every South Indian home, but बाद में वो उसका एक अपील जो है वो पूरे देश भर में चला गया। बिकॉज उसका एक तो मानी समझ में आए लोगों को, और उसके साथ जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, वो पूरा जो प्रोडक्शन है, एंड जो वीडियो बना उसका, वो आपको सब समझा देता है क्या है करके। और मैं कह रहा हूँ कि जीसस कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, Come back जो Allah, है come back अल्लाह Jesus. या एंड कृष्णा एंड एवरीथिंग, वो एक्चुअली 90s, एंड ऑफ 90s में देयर वाज अ पीस मार्च इन श्रीलंका, एंड दिस सॉन्ग प्लेड फॉर 24 आवर्स। या तो आज भी देखिए पीस की कितनी ज़रूरत है, मार रहे हैं पीट रहे हैं, क्यों भाई? जिंदगी तो बहुत छोटी है, क्यों? यू नो दैट इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। हरी सर, आपका म्यूजिक हमेशा जोड़ता आया है, और आज जब हम इतने सारे डिविजन्स देख रहे हैं तो किस तरह से क्या समझ में नहीं जज्बा आता है, जग समझ में नहीं आता है, क्योंकि डिविजन्स होते हैं उस बात पर जो सदियों पहले बीत गया है, ना तो आज के आदमी से कुछ लेना देना। आज के आदमी जो है एक दिन, मतलब दिन महीने वो मेहनत करके वो चलाता है अपने। व्हाट इज रिलीजन? इज अ वे ऑफ लाइफ, और उस वे ऑफ लाइफ में आप अपने परिवार को सुखी करते हैं, देखभाल करते हैं। इट्स अ कोड ऑफ लाइफ। बिल्कुल वही रहने दो ना। एग्जैक्टली, आई मीन वी नीड पीस टू सर्वाइव। और इसके ऊपर ये पैंडेमिक एयर क्या क्या हो रहा है, आई थिंक वी शुड जस्ट पुट एवरीथिंग बैक एंड यू नो एक लिव टुगेदर। वो तो करना ही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। to ask you about MS Subbulakshmi ji. She sang Vande Mataram. So how music became a vehicle of, nationalism and positive feeling about your nation in South? Can you just kind of tell our viewers? Well, I would say that any Indian has the same positivity and feeling towards our country. Our capital is Delhi, but we are all made of the same emotions, made out of the same earth called India. And पहले के ज़माने में भी लेकिन आप देखिए ना, पैट्रियोटिक जो हमने फाइट किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, उसमें सारे तो थे, तो जज्बा तो एक ही है हर जगह। साउथ में उइरे बहुत पॉपुलर हुआ, जैसे तू हीरे पॉपुलर हुआ। उइरे வந்து என்னோடு கலந்து விடு, உயிரே உயிரே என்னை உன்னோடு கலந்து விடு, நிலவே நிலவே இந்த விண்ணோடு கலந்து விடு, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। Hari ji, this great interaction can go on and on forever with such a huge body of work. लेकिन आखिर में ये गुजारिश करना चाहेंगे कि एक ऐसा देशभक्ति पर नगमा जो आपके दिल के करीब हो, फिर वो आपने गाया हो या आपने सुना हो, उससे जो आगाज अच्छा हुआ है तो इंतहा भी उतनी ही बुलंद हो। तो प्लीज सर, इरशाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की यही तमन्ना और देशभक्ति का यही जज्बा हमें रोज हरिहरन सर प्रेरित करता है देश के लिए कुछ और नया करने का। और जैसे ही कि एक गाने में है कि बजे सरगम हर तरफ से और गूंजे बनकर देश राग, आपका संगीत और आपकी मौसीकी इसी देश राग की परिचायक है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। नमस्कार।